آج ہم تفصیلاً بات چیت کریں گے حد بندی کمیشن کو لے کر کے، اور خاص طور سے اس حد بندی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور ایڈوکیٹ الطاف چنجوا صاحب موجود ہیں۔ اکثر ان کے جو ہے وہ آرٹیکلز وغیرہ اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور خاص طور سے حد بندی کمیشن کی رپورٹ کے متعلق جو ہے آج کے ساتھ تفصیلاً بات چیت کی جائے گی۔ تو الطاف صاحب، جے کے ایل ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے آج کے ہمارے اس خصوصی ٹاک شو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نیاز صاحب۔ الطاف صاحب جی سر، سب سے پہلے میں ہمارے ویورز کو لیے یہ سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ حد بندی کمیشن ہے کیا سر؟ تھوڑا سا اس کے متعلق جانکاری دے دیجئے کہ حد بندی کمیشن ہے کیا، یا یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی جو یہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے ہمارے، اصل میں یہ سارا مدعا ہے کیا؟ مختصراً ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں نیاز صاحب، حد بندی کمیشن جیسے حد بندی لفظ سے ہی اس کے معنی سمجھ آتے ہیں کہ دوبارہ سے حد بندی کسی جگہ کی، کسی علاقے کی، کسی رقبے کی جو ہے حد بندی کرنا، کہ اس کی حد کہاں تک، ہم لیمیٹیشنز کہاں تک مقرر کرتے ہیں۔ تو ڈیلیمیٹیشن کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی حلقے جو ہیں ان کی جو ہے وہ حد بندی کی جاتی ہے، ان کے جو کتنا جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ رہے گا۔ جموں کشمیر اس سے پہلے بھی 2002 اور اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں پر ڈیلیمیٹیشن جو ہیں ہوئی ہیں، اور یہ ڈیلیمیٹیشن جو آبادی بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کی جاتی ہے پوری انڈیا میں، اور خاص کر جموں کشمیر میں بھی 2026 تک جو ہے وہ آئندہ یہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی حد بندی کمیشن جو ہے نہیں ہوگی، حلقے بڑھیں گے نہیں، کیونکہ 5 اگست 2019 کو تنظیم نو قانون کے تحت یہاں پر جو ہے جموں کشمیر ریاست کو 2 یوٹیز میں تقسیم کیا گیا، اور اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ 87 نشستیں ہوا کرتی تھی لداخ کو ملا کے۔ لداخ کو چونکہ الگ کر دیا گیا ہے اور اس میں بغیر اسمبلی کے وہ یوٹی ہے، اور جموں کشمیر میں جو ہے وہ پہلے چونکہ 4 نشستیں جو ہیں وہ لداخ سے تھی تو وہاں چلی گئی، تو یہاں پر 3 بچی، اور اس کے بعد جو ہے تنظیم نو قانون کے تحت یہاں پر 7 مزید اسمبلی حلقوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی گئی، کل یہ یہاں پر 90 کی گئی۔ اب چونکہ 90 کی گئی ہیں تو ان کی حد بندی کرنی تھی دوبارہ سے، جو مزید 7 نشستوں کا اضافہ ہونا تھا، اس نشست کے لیے یہاں پر جو رنجنا دیسائی جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں ان کی قیادت میں سربراہی میں حد بندی کمیشن جو ہے وہ حکومت ہند نے مقرر کی ہے یہاں پہ، جس نے پچھلے دنوں اس کی پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں جو اس کے ایسوسیٹ ممبرز ہیں، ایسوسیٹ ممبر ان کو ایسے ان کا وہ حتمی رائے یا ان کا وہ فیصلہ سازی میں کوئی اتنا رول نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ممبر تھے۔ ایسوسیٹ ممبران میں جو جموں کشمیر کے 5 اراکین پارلیمان ہیں وہ ہیں، تو ان کی پہلے اجلاس میں نیشنل کانفرنس سے وابستہ اراکین پارلیمان نے شمولیت نہیں کی تھی، تو پچھلے دنوں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں حد بندی کمیشن نے جموں کشمیر کا دورہ کیا تھا، اس نے جموں کشمیر، سری نگر اور کشتواڑ میں جا کے وہاں پہ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف وفود سے ملاقات کی۔ تو یہ حد بندی کمیشن اسی کی یہ ایک عبوری رپورٹ، جو عبوری رپورٹ بھی نہیں کہیں گے اس کو، انہوں نے تھوڑا ڈرافٹ جو ہے اس کی مین ہائی لائٹس جو ہیں وہ انہوں نے جو کمیشن نے گزشتہ دنوں نئی دہلی میں منعقدہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ ایسوسیٹ ممبران کے ساتھ شیئر کی ہیں، جس کے مطابق جموں صوبے کو جو ہے وہ یہاں پہ 6 نشستیں دی گئی ہیں، اور کشمیر میں 1 نشست ہے، اور کشمیر میں جو نشست دی گیا وہ ضلع کپواڑہ میں ہے۔ جموں میں یہ راجوری میں 1 نشست بننے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جموں ضلع کے اندر کوئی نشست نہیں ہے۔ سانبا ڈسٹرکٹ میں وجے پور اور بڑی برہمنا ان علاقہ جات سے 1 نشست نکالنے کی بات ہے۔ اسی طرح ادھم پور چنینی سے کے بیچ میں سے 1 نکالنے کی ہے، کٹھوا میں 1، اور رام بن کشتواڑ سے جو ہے وہ نشستیں جو ہیں وہ
बनाई जाएंगी 6 नशिस्तें, और ये हदबंदी कमीशन उसी पर, उसके साथ ही पहली मर्तबा यहाँ पे जो हदबंदी कमीशन के मुताबिक यहाँ पर, चूंकि अब यहाँ पे बराह रास्त मरकजी कवानीन का इतलाक हुआ है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है सियासी रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को है 9 नशिस्तें, क्योंकि 10% उनकी आबादी है और 10% अहज़ाब के हिसाब से उनको 90 में से 9 नशिस्तें जो हैं वो उनके लिए मखसूस हैं, और 7 नशिस्तें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए इससे पहले जो हल्के मखसूस थे उनको रिजर्व करके नए हल्के जो जहाँ पर एससी की आबादी के तनासब के हिसाब से उनको वहाँ पे जो है वो नशिस्तें उनकी मखसूस की जाएंगी। जी, तो अल्ताफ साहब आपने जो है तफसीलन जानकारी जो है ये इस मुतालिक फरहम कर दी है, जो काफ़ी अहमियत की हामिल है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स ने खूब अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि हदबंदी कमीशन है क्या और किस तरह से ये होता क्या है इस मुतालिक। अच्छा अल्ताफ साहब, अब जो है मुख्तलिफ जो अजला हैं तो वहाँ से जो इसमें इंटर की गई हैं, तो इस मुतालिक जो है वो आपने बात की है। अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एक पुंछ का डिस्ट्रिक्ट है, और अगर हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बड़ी क्या साराइयाँ लगाई जा रही थी कि यहाँ पर एक जो हल्का इंतखाब है वो और बनेगा। जिस तरह से पुंछ है, इसमें मंडी, सावजियाँ, लोरन और ये तमाम इलाका जात जो है ये इसमें जो है ज़म्न किए गए हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि ये जो दूसरी जगहों से जो ये सीट्स जो जो नई सीट सामने आई हैं, तो क्या इसमें पुंछ को एक और एमएलए की नशिस्त देना, एक और हल्का इंतखाब देना क्या जरूरी था? जो इस वक्त हदबंदी हुई है, अगर उसकी पॉपुलेशन और ये तमाम चीजें देखी जाए तो क्या यहाँ पर भी एक दूसरी सीट बनती थी या इसमें ही चूक हुई है? और देखिए नियाज़ साहब, जो हदबंदी कमीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आबादी। हमेशा जो डिलिमिटेशन होती है वो आबादी के तनासब से होती है, और आबादी इसमें इनका ये तरीकाकार होता है, क्योंकि ये हदबंदी कमीशन जो है ये साल 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक हुई है, तो उसमें जम्मू कश्मीर जो है वो किसी भी रियासत की जब मुल्क लेवल पे, जब मुल्की सतह पे अगर लोकसभा की नशिस्तें आपको रिजर्व करनी है, उनकी डिलिमिटेशन करनी है, तो फिर पूरे कंट्री को एज ए सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पूरी यूटी को एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाता है। फिर उसमें जो पॉपुलेशन पूरी है उसको फिर डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय 90। अगर 90 के हिसाब से करेंगे तो ये कोई 1,36,300 कुछ बनता है कि उस हिसाब से अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर इसमें आबादी, सबसे बड़ा फैक्टर आबादी है। उसके बाद ये देखा जाता है कि ज्योग्राफिकल उसका फार फ्लंग एरियाज कितना है, उसकी जोड़ तोड़। अब बहुत सारे इलाके हैं कि अगर वहां पे फिर इलाके बहुत ज्यादा हैं लेकिन आबादी कम होती है तो उसका 10 से 15,000 आबादी का उतार चढ़ाव रखा जाता है। लेकिन इस बार हदबंदी कमीशन ने, और वो जो पैरामीटर्स थे इससे पहले वो एक सेट पैरामीटर्स हैं हदबंदी कमीशन के, तो उनके मुताबिक जैसे आपने जिक्र किया कि पुंछ, इसी तरह पुंछ जिला और भी बहुत सारे इलाका जाते जो कि डिजर्व करते थे कि इसमें वो वहां पे नशिस्तें जो हैं पड़ेंगी। लेकिन इस बार जो अभी तक मीडिया इतलात, क्योंकि अभी तक मुकम्मल तौर पे जो कोई मुस्तनद या ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन तो बाहर नहीं आई है। अलबत्ता जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट नेशनल चैनल्स ने या एसोसिएट मेंबर्स जो हैं, जो उन्होंने मीडिया से बात की है, तो उन्होंने जो कहा कि जो पैरामीटर्स अडॉप्ट किए हैं कि इन्होंने एक चीज ये देखी है कि मतलब को बॉर्डर के नजदीक कौन से इलाके, जैसे कुपवाड़ा को उन्होंने प्रायोरिटी दी कि वो बॉर्डर एरियाज है तो वहां पर लोगों को। इसी तरह फिर इन्होंने देखा जहां कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है या और जो फैसिलिटीज नहीं है, तो कुछ थोड़ा से अलग से इन पैरामीटर्स करके इन्होंने क्या किया है कि वो नशिस्तें बताई हैं। अगर आबादी को देखा जाता तो गांधीनगर जम्मू जो है या जम्मू वेस्ट है तो इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से मजीद शायद नशिस्त बन सकती थी। लेकिन जम्मू जिले में उन्होंने ये कहते हुए नहीं बनाई है कि यहाँ पे रोड फैसिलिटी भी है और भी दूसरी सहूलियात हैं, तो एक्सेसिबिलिटी है, तो लिहाजा यहाँ पे ना किया जाए।
तो अब मजीद क्योंकि अभी उन्होंने 31 दिसंबर तक एसोसिएट मेंबरान से उनके एतराज़ात हफ्जात तलब किए हैं, अभी उन्होंने उस पर अपनी मालूमात जो हैं वो उनको देनी है, जो भी हफ्जात एतराज़ात हैं। उसके साथ साथ बाद में जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, इसको पब्लिक डोमेन में भी रखा जाएगा, फिर अवाम से भी उस पर एतराज़ात जो हैं वो तलब किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ हल्कों से या जो भी लोगों ने इस पे आवाज़ भी उठाई है, उस पे अपनी रखी है, तो मुझे लगता है जब हदबंदी कमीशन में शायद वो थोड़ी बहुत मामूली रद्द-ओ-बदल भी देखने को। जी, तो अब अल्ताफ साहब, जिस तरह से आपने ये जो एक एसोसिएट मेंबर्स हैं, पहले आपने बताया था कि इनकी कोई इतनी यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इनके कहने से ये जो सिलसिला हमारे सामने आया है इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है। तो एज ए तज्जिया निगार, एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते, चूँकि आप जो है मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ एंगल से जो है इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं और एनालाइज करते आ रहे हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से एसपी और एससी के लिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेरे ख्याल से पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले वक्त में पॉलिटिकल गलियारों में, सियासी गलियारों में, ये जो रिजर्वेशन है इसको लेकर के क्या कुछ सूरत हाल हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? इस तरह से हम बात करें कि कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ पर पहाड़ी लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है और साथ में जैसे पहाड़ी कश्मीरी या दूसरे लोग हैं, अगर वो वाली सीट एसटी रिजर्व हो जाती है तो कम्युनिटी लेवल पर किस तरह के जो है वो असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या मरकज ने अपने मफाद को देख करके इस तरह की हदबंदी की है या ये इसी तरह से होनी चाहिए थी? और आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा सियासी गलियारों में हमें? साहब देखिए नियाज साहब, जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है वो सियासी रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट को इससे पहले भी यहाँ रिजर्वेशन थी, वो काफी अरसे से उनको रिजर्वेशन मिली है। शेड्यूल ट्राइब को जो है वो रिजर्वेशन नहीं दी गई, जो कि उन्हें दी जानी चाहिए थी, वो बहुत पहले दी जानी चाहिए थी, वो कई वजूहात की बिना पे नहीं दी गई। वो शेड्यूल ट्राइब जो है वो पूरे हिंदुस्तान में है, आइन ने उन्हें हक दिया है और वो उसके हकदार हैं, वो होना चाहिए। बिल्कुल। उसके तहत अब ये जो 9 नशिस्तें, ये तो यकीनी तौर पे है कि इसमें से एक नशिस्त जो है वो ग्रे सेक्टर की होगी, वहां पे शीना और दर्द कबाइल के लोग रहते हैं, तो वो उनके खाते में जाएगी। और बाकी जो हैं 8 नशिस्तें हैं, उस पे तो ये यकीनी है कि उस पे दर्ज फरिस्त कबाइल जुमरा में जो लोग होंगे उन्हीं में से कोई बनेगा। पहले ये था कि बाज दफा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इससे पहले भी जैसे दर्ज फरिस्त कबाइल जो हैं वो बुजुर्ग कबाइल हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा अरकान कानून साजिया जो हैं वो मुंतखब होकर आते रहे हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें 8 थे, उससे पहले भी ये तादाद कम ज्यादा होती रही है। तो हुकूमतें जो हैं या सियासी जमातें जो हैं वो जो क्या करती थी कि किसी भी जगह इन इलाकों में जो मैंडेट देती थी, वो कैंडिडेट की उसकी सलाहियत कितनी है, वो जीत सकता है, विनिंग पोजीशन है, तो उसके हिसाब से देती थी। तो बाज़ औक़ात दर्ज फरिस्त कबाइल जो हैं उनमें से किसी को शायद टिकट ना भी मिलती। लेकिन अब ये हो गया है कि अब ये जो 9 नशिस्तें हैं, इस पे हुकूमत सभी सियासी जमातों के लिए ये अब मजबूरी बन गई है कि वो जिसको भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो इन्हीं शेड्यूल ट्राइब में से ही होगा। साथ ही आपने जो दूसरी बात ये की कि पहाड़ी कबीले के हवाले से कि आबादी, तो ये अब जैसा आप खुद भी देख रहे हैं पिछले काफी अरसे से यही जो है पहाड़ी कबीले का जो सबसे बड़ा जो रिजर्वेशन या जो खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं कि उनका यही कहना है कि 5 अगस्त 2019 की जो फैसला हुआ है उसके बाद ये जो रद्दो बदल हुई है उसमें अगर उनको फिलहाल अगर शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जाता, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, उम्मीद है, यकीनी है कि हुकूमत हिंद शायद इंसाफ करेगी, लेकिन अगर नहीं दिया जाता इस सूरत हाल में, मौजूदा जो सूरत हाल है उसके तहत ही अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर चूंकि आबादी के तनासिब के हिसाब से जहां पर शेड्यूल ट्राइब की ज्यादा आबादी है तो वहां पर वो नशिस्तें मखसूस होनी है, तो वो जाहिर सी बात है ये ज्यादा रजौरी पूंछ में होनी है, तो उससे यकीनी तौर पर पहाड़ी कबीला के साथ एक इंसाफी होगी कि वो 65 से 70% होने के बावजूद
इस काबिल नहीं होंगे कि अपने कबीले का कोई जो है वो नुमाइंदा मुंतखब कर सके। तो इसीलिए जो है वो उस वक्त जिस तरह से हदबंदी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें आपने कहा कि एक आईनी हक था, जो आईनी हक जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो आप सामने आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एप्रिसिएशन के काबिल जो है वो बात है। तो अल्ताफ़ साहब, अगर इसी के बीच में सरकार ने जिस तरह से बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, तो कितना पुख्तगी के साथ, जैसे आपने अभी बात की भी, लेकिन क्या पहाड़ी कबीला को, पहाड़ी लोगों को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कि कितना जल्दी जो है वो उन्हें भी एसटी का स्टेटस मिल जाएगा? क्योंकि अगर 65-70% लोग हैं और वो अगर अपनी कौम की जो है वो रहनुमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी तो एक नाइंसाफी होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है पहाड़ी कबीला के लोग, उन्होंने, लीडरान ने, क्योंकि ये 70 की दहाई से ये जदोजहद उनकी चल रही है और हर एक ने अपनी बसात के हिसाब से हर वक्त में काम किया है। हो सकता है किसी से भूल चूक भी हो, लेकिन वो इन चीज़ों का हिस्सा रहता है, लेकिन सभी ने यकीनी तौर पे मुखल्लस होकर काम किया। अलबत्ता कुछ चीज़ें मुकद्दर में भी नहीं होती और कुछ कहीं शायद कहीं ना छोटी मोटी कमियां रही होंगी। और दूसरा ये था कि मरकजी सरकार को शायद किसी हद तक हम कन्विंस करने में नाकाम रहे, या कन्विंस किया भी और वहां से हमें जो है रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो मरकज में जो इक्तदार में जमात थी उसी ने ये एसटी देना है। तो इससे पहले जिस तरीके से हम कहीं माजी का जो ये तहरीक है उस पर अगर आप उसकी तारीख पढ़ते हैं तो कई बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि बहुत सारे कुछ सियासी जमातों के लीडरान ने जो है वो उनका बड़ा मनफी रोल रहा, बड़ा उनकी मुखालफत की वजह से और वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि जदोजहद जो है इस वक्त हुकूमत हिंद की तरफ से भी, जैसे 2019 में भी वज़ीर आज़म ने लाल किला की फसील से इस चीज़ का ऐड किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह पहली मरतबा खसूसी दर्जे की तनसीक के बाद जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं तो उन्होंने भी अपने खिताब में सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने कहा तो, और फिर उसके हवाले से जो इस वक्त इक़्तिदार में जमात है उससे वाबस्ता जो लीडरशिप है, और उन्होंने भी बारहा इस बात की यकीन दहानी करवाई है। और हालिया दिनों आपने देखा हुआ हिदायत पंजाब के दौरे पर हुक्मरान जमात की क़यादत जो है, रियासती क़यादत है, यूटी की क़यादत, वो दौरे पे गई थी और वहाँ पे बिला सियासी तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पहाड़ी कबीला के लोगों ने और अहम शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया, उनके उस जलसों में शिरकत की और बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारा यहाँ पे आने का एक ही मकसद था, कबीला के एसटी के मुतालबा हमारा जो है वो पूरा किया जाए जो है। और दूसरा साथ ही यकीन दहानियों के अलावा साथ साथ जो है वो पहाड़ी कबीले का ये एक मजबूत जो है वो दावा है और वो तमाम लवाजमात, वो तमाम पैरामीटर्स जो एक किसी भी कबीला को दर्ज फहरिस्त ज़ुमरा में शामिल करने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से और आइन हिंद के तहत जो लवाजमात हैं, कवायद हैं, वो सब ये पूरा करता है। बस अब एक सियासी अज़म दिखा के तो उसको जो है वो देना है, तो यकीनी तौर पे। और दूसरा मैं आपको न्याज़ साहब ये जिक्र करता चलूं कि हदबंदी कमीशन जो थी, ये जो इन्होंने, ये अगर हमें इससे पहले भी अगर एसटी मिल जाता या अगर बाद में भी मिलेगा तो हमें नशिस्तें, इसमें यह है कि जब अगर आबादी बढ़ेगी तो पहाड़ी कबीले को उसका, अगर पहाड़ी कबीला भी एसटी में शामिल होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 10-12 लाख 15 लाख के करीब आबादी है पहाड़ी कबीले की भी, तो ये आबादी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से रिजर्वेशन कोटा भी बढ़ना है। लेकिन उसके लिए एक बुनियादी चीज ये है कि हमारा सर्वे होना चाहिए। जैसे गुजर बकरवाल कबीला को, जब कबाइल को साल 1991 में जब हुकूमत हिंद ने दर्ज फहरिस्त ज़ुमरा में शामिल किया तो उनका जो सबसे पहला सर्वे हुआ है वो साल 2001 में हुआ। उसमें उनका वो अदादो शुमार, क्योंकि
हुकूमत हिंद जो है वो सेंसस जो किया जाता है, वो सेंसस हर 10 साल के बाद उसको अहमियत मिलती है। तो हमारी अगर हमें इंतखाबात आइंदा इंतखाबात से कबल हुकूमत हिंद ST दर्जा दे देती है तो फिर भी नशिस्तें हमारी यही रहनी है। अब हमें जो अगला जो सर्वे होगा या कोई बीच में हुकूमत कोई टास्क फोर्स भी तश्कील दे सकती है, अगर वो ना करे भी तो फिर अगला जो सर्वे होगा तो उसमें हमारा अदाद शुमार आ जाएंगे। उसी अदाद शुमार के साथ अगली मरतबा ये नशिस्तें बढ़ भी सकती हैं। और इस बार ये होगा कि रजौरी पूंछ में चूंकि पहाड़ी और गुजर बकरवाल कबाइल के लोग ही रहते हैं, तो अगर ये पहाड़ी कबीले को भी ST मिल जाती है तो ये है किस्म का, आप ऐसा समझे कि रजौरी पूंछ रिजर्व होके भी ओपन है, क्योंकि यहाँ दोनों कबाइल के हैं। फिर किसी को भी आजादी होगी कि वो कोई भी लड़े, तो वो उसकी आगे ताकत है कि वो कितना असर रसूख या उसको अवामी हमायत कितनी मिलती है, तो फिर कोई भी जीत सकता। आखिर में क्या पैगाम रहेगा सर आपका हमारे व्यूअर्स के लिए और खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक जोश हैं इस कमीशन को लेकर के, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए एक मैसेज तमाम पब्लिक के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा इस हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर? जैसे नियाज़ साहब मैंने पहले ही बताया कि ये तो अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, अभी इसके भी चंद निकात जो हैं वो शेयर किए गए हैं। मुकम्मल तौर पे जब रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तो उससे कबल कोई भी हतमी राय किसी भी हवाले से काम करना वो शायद कबल अज़ वक़्त होगा। और साथ ही क्योंकि जब इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तो हर शख्स को ये हक होगा कि वो अपने एतराज़ात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार कर सके, तहरीरी तौर पर कमीशन को बता सके। और यकीनी तौर पे जो हतमी रिपोर्ट जो है वो जिस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, उसमें मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है वो साबी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके कोई ऐसा मुनसिफ़ाना फ़ैसला करेगी जो सभी के लिए काबिल कबूल है। तो अभी फ़िलहाल हमें कबल अज़ वक़्त कोई भी हतमी राय जो है वो कायम नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के ये अहम जानकारी थी जिसे हमने आप तक पहुंचाया। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और ख़ास तौर से जिन नए साथियों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, आपसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि JKL विजन के फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। हम इस तरह के कई प्रोग्राम पब्लिक डोमेन में लेकर के आते रहते हैं जिनसे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचता है और ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचती रहती है। इसके अलावा JKL विजन का YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पर भी हमारे तमाम तर मवाद और सच्ची खबरें जो है वो अक्सर मौजूद रहती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आज के डिबेट में भी हमने बात की कि हदबंदी कमीशन की तरफ से ये जो एक सरसरी रिपोर्ट है उसके कुछ नुकात जो है वो सामने लाए गए हैं। तफसीलन ये रिपोर्ट अभी जो है वो सामने नहीं आई है। 31 दिसंबर तक जो है वो सजेशंस मांगी गई हैं जो मेंबरान हैं उनसे। उसके बाद पब्लिक डोमेन में भी ये रिपोर्ट लाई जाएगी और उसके बाद इसका जो हतमी फैसला होगा, जब पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो उस पर फिर हम तफसीलन जो है वो गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल आज JKL लाइव टॉक शो में इतना ही। अपने दोस्त सैयद नियाज़ साहब को दीजिए इजाज़त।